Very good afternoon to all the participants, friends, colleagues who have joined for this session of webinar. So this is the first iteration, the first in its series. As the IRITEM is now starting a series which is we are calling it by name Innovator Series, and it is basically discussing and deliberating upon the small innovations, good work done at the various field level by various officers in various divisions, zones, or any of the field units across Indian Railways. So this is a platform to come, discuss, showcase, and see what are the next steps we can take to proliferate more and more good work which is being done on field. So that's the basic motive. It also will serve as a knowledge repository for the work done, as well as it will improve our outreach beyond the physical boundaries of training institute, IRITEM or ZRTIs or things like that. So of course, when the outreach is more through digital means, there is a direct connect. The chances of adoption of those innovations या उन अच्छी चीजों के adoption का chance भी बढ़ जाता है. So with that opening remarks, let me come to the topic. So the first in the series is what we have devised for today, which is a discussion on the digital way of working at stations, and we'll be discussing the innovation or the work done by Senior DIUM, the erstwhile Senior DIUM Sonpur, in digitizing the station records and all the processes that happen at the station. So he has made a system called Samay, which is station automation monitoring with alerts for yards. So this is the acronym Samay. And before we go any further on the topic, let me just introduce the speaker of the day. So we are so glad to have Mr. Manish Saurabh, who is a IRTS officer of 2014 exam batch, an outstanding officer who graduated from IIT Bombay. He did his BTech from IIT Bombay. And apart from his experience in before joining railways, he has also worked as engineer consultant in Amana Wall Bridge, Abu Dhabi, and worked on the world's first zero carbon emission city, which is Masdar, for almost 2 years in Abu Dhabi, straight from the college. And after that, he joined as civil services. But his knack for improving, problem solving, and doing things innovatively continued. And all his stints, he started the main stints have been the as DTM Barka Khana in Dhanbad. He had made improvements, a lot of improvements in rake examination in Patratu shed, improvements in Dudhichua loading improvements, where it cut down upon the time it took to load the rake. And similar improvements were done as senior divisional safety officer in Dhanbad by way of bringing data-driven safety dashboards. And but what we are interested in today is his which relates to his present stint. Sorry, not the present. Just a few days back, he got transferred and posted as senior DCM Dhanbad. So his erstwhile stint as senior DIUM Sonpur, in which he has, of course, done many things, but the most prominent of them is the Samay, which we'll be discussing in a short while. He has been acknowledged at various levels. He has been awarded by GM with a GM award for 2020, and he has been appreciated at many levels. I mean, apart from GM, the MOBD's appreciation letters and many more appreciation and accolade to his cap. So Samay is basically, as we talk about, is absolutely the need of the hour. We have been talking about this kind of digital change in our way of doing things at station, but for quite some time. But this has been implemented very successfully by
and of course driven by the motivation by Shri Manish Saurabh. So apart from this, looking at it as a innovative step in how to transform and make easier and without reducing the errors in our own way of doing things manually. This entire exercise has to be seen by two, three different things. It's a classic story of change management because railways, as you know, is a very, very big organization. And I mean, to bring about a change in any of the processes, it's been a 150-year-old, more than 150-year-old organization, and therefore to bring a change in the processes, way of doing things, extremely difficult task to do. There's a lot of institutional inertia in bringing about a change. So this is a classic case of change management study where it has been successfully brought, and more than that, why it succeeded is that it is a change which is driven from a bottoms up approach. As I've been discussing with Manish, this change he has discussed at length with the various foot on the grounds who actually run and man the station. So the actual problems faced by them, what will be practical and workable, what will be not, all these things have been discussed at length before arriving at a solution. And therefore, I look at it as a case study where it is the change itself, if it is driven by the bottoms up approach, is likely to succeed and sustain. It's a clear example of leadership. The grit one has, I mean, in the bureaucratic system of the government, I mean, if you want to do something new, the limitations and constraints are many. And therefore, the leader requires the grit. He has to constantly do it, and many a times on his own personal cost and personal motivation, he has to do this, which I'm so glad that the gentleman who will be speaking in front of you has done it, and it's a clear example of leadership also at the field level. And last but not the least, this is a change which ticks many boxes which are required for a change in order to become the easy adoption of a change in an organization as big as Indian Railways. So without taking any further time, I would now request the speaker, Mr. Manish Saurabh, to kindly address the session. Good afternoon, sir. Thank you for so many praises. It was you who one of the few many seniors who have recognized it, and you have given me a chance. So I will start my with my sincere thanks to Shishir sir, who has been motivating me since I was visualizing this idea. So I will jump straight to the presentation first. So, and I will keep on explaining. I joined railways and I started working as IRTS officer. So initial posting were of course in the operations. I worked as AOM and then DOM and DTM and senior DSO and senior. So what I observed is most of the departments, when it comes to technology, they have accepted it very fluently and frequently. If a relay room is opened, a message is generated and it goes straight to the signal departments, and similarly in the TMS, all engineering inspection can be done. But when it comes to operations, many of the things have been left out and they have not been digitalized yet. So what has resulted is the cutting edge, and most of the work are being executed there, be it block, be it the train running, be it passenger amenities, everything is related there. So I observe that the many of times कि जब आप कोई भी चीज लेते हैं वो मेमोरी बेस्ड वर्किंग पे हमारी फोकस है. इफ आज मुझे उसको मैसेज देना है स्टेशन को कि कल ये ट्रेन डाइवर्ट होके आएगी, इसकी स्टॉपेज है यहाँ पर, वो उसने डायरी में लिखवाया, अगला आदमी आया, 2-3 शिफ्ट चेंज हो गए एंड समहाउ ही मिस्ड इट, और मिस्ड जब कर दिया तो उस पे अब हमारे पास चारा बस 2 ही होता है, या तो हम उसको चार्जशीट देते हैं या फिर उसका हम काउंसलिंग करते हैं.
ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है, क्योंकि हम उसकी वर्क लोड उसका बढ़ाते जा रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इंप्रूव देयर आईटी कैपेसिटी टू हैंडल मोर एंड मोर वर्क. So let's start. What is present scenario? A station master has multiple file registers to maintain. Somewhere even up to 56 registers are being maintained by station masters. Multitasking, blocks भी लेना है, train passing भी करना है, manual intervention, memory-based working and chances of human error are high. What we proposed and what we have implemented at 3 stations, what I am talking about has been implemented at 3 stations for last 1.5 years, and Sonpur, Hajipur and Parmanandpur. एंड परमानंदपुर स्टेशन पे हमने टोटल डिजिटलाइजेशन कर दिया है. वहां पर सारे ही रजिस्टर्स हट गए हैं, सारे मेमो, सारे फॉर्म, ऑल एवरीथिंग आर डिजिटल नाउ देयर. सो अभी जो हमारा अभी यहाँ पर बस ये 6 रजिस्टर हैं जो मैनुअली मेंटेन हो रहे हैं. आई एम वर्किंग ऑन इट ऑल्सो. सो होपफुली these all 6 registers will also be digitalized. These are the register: public complaint register, safety meeting register, accident register, PCI and petty repair, staff grievances. अब जो रजिस्टर्स हैं हमारे जो अभी करेंटली मेंटेन हो रहे हैं एट स्टेशन, इट इज ऑलमोस्ट 42 इज एसेंशियल रजिस्टर, जिसमें से रेलवे बोर्ड जीएनएसआर का प्रिस्क्राइब 4 है, जोनल रेलवे के प्रिस्क्राइब 27 है, एस्टैब्लिशमेंट मैनुअल के 5 हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल, एक्सीडेंट मैनुअल, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल के 3 हैं और कमर्शियल के 3 हैं. टोटल 42. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल भी रजिस्टर्स थे, उनको मर्ज भी किया है सब में. अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो 42 रजिस्टर्स हैं, इनमें इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज पे हमने डिवाइड किया. तो टॉप 10 जो ये हैं फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ऑलमोस्ट डेली यूज होते हैं. सबसे ज्यादा ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, टीएसआर जैसे कहते हैं, वो बड़ा सा रजिस्टर जो स्टेशन मास्टर सामने रखता है, स्टेशन डायरी, वीडर कनेक्शन, रजिस्टर और मेमो रजिस्टर, ट्रैफिक ब्लॉक, कॉशन, ऑर्डर मेमो सर्विंग रजिस्टर एंड अटेंडेंस रजिस्टर. इसके अलावा जो मॉडरेटली यूज्ड रजिस्टर है वो नेक्स्ट जो लाइट कलर्स में है, ये मॉडरेटली यूज्ड है. ऐसे रजिस्टर 21 हो जाते हैं. 11 रजिस्टर ऐसे हैं जो मॉडरेटली यूज्ड हैं और रेयरली यूज्ड भी रजिस्टर्स हैं. बट दीज ऑल रजिस्टर्स क्रिएट वॉल्यूम. जब स्टेशन मास्टर आता है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि उनको इतने रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं. और इसमें एक और बात यह है कि सिमिलर एंट्री बहुत सारे रजिस्टर्स में जाती हैं. अब वो हर रजिस्टर को हर बार नए तरीके से हर बार उसे भरना है. उसमें कहीं ओवर राइटिंग हो गई, कहीं अंडर राइटिंग हो गई, कहीं कटिंग हो गया, तो उसके लिए उसको सुनना भी पड़ता है. अब व्हाट वी हैव प्रपोज इज टोटल डिजिटलाइजेशन ऑफ स्टेशन वर्किंग. टोटल एम्बियंस को डिजिटलाइज करें, जहां गलती हो उसे अलर्ट दें, सेफ भी रहे और उसका प्रेशर भी कम हो और वो अपने प्लानिंग और सेफ्टी वाले वर्क्स पे. तो लेट्स जंप इनटू द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टेशन मास्टर इन ट्रेन ऑपरेशन. तो पहला है इंक्रीज नंबर ट्रेन ऑपरेटेड पर शिफ्ट. मल्टीपल ट्रैक्स, मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, क्वाड्रपलिंग भी हो रहा है, एक्सेसिव पेपर वर्क्स है, ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ओरल कन्वर्सेशन को हमने लिखना स्टार्ट किया है कि कंट्रोल से मैसेज जाता है, वो उसको फिर डायरी में लिखता है, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करता है. फिर अलग अलग टाइप के ट्रेन हैं, टीओडीज हैं, डाइवर्टेड ट्रेन है, पार्सल ट्रेन है, ओबीसीज हैं, उनका अलग अलग पैमाना है, उनको कैसे सेफली पास करना है, किस लाइन से पास करना है. इसके अलावा मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम, एक ही टाइम उसको घेरे रहते हैं. कभी एसएनटी का ब्लॉक चाहिए, किसी को इंजीनियरिंग का ब्लॉक चाहिए, किसी को टीआरडी का ब्लॉक चाहिए, कहीं फेलियर हो गया है, कहीं पब्लिक कंप्लेंट है. और इसके अलावा कुछ अभी भी लार्ज नंबर ऑफ एलसी गेट्स आर एग्जिस्टिंग. एटलीस्ट व्हेन आई वाज वर्किंग इन सोनपुर, वहां पे बहुत सारे गेट्स हैं जो अभी तक क्लोज नहीं हो पाए हैं. बहुत सारे प्रपोज्ड हैं पर क्लोज नहीं हो पाए हैं. तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है. रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत उसमें होते हैं, जिसमें वो बेचारा उसमें फिर उसको उसके लिए पनिशमेंट भी झेलना पड़ता है. तो अब हमने इसे बॉटम अप अप्रोच से किया. हमने देखा कि जब टीएसआर, पहले भी ईटीएसआर, जस्ट टू रिमाइंड यू, ईटीएसआर इज जस्ट अ पार्ट, ऑलमोस्ट 10% ऑफ इट, बट इट इज नॉट एंटायर डिजिटलाइजेशन. ईटीएसआर में आप किसी एक ट्रेन का एक टीएसआर के रजिस्टर में डिजिटल एंट्री करवा देते हैं. बट इसके अलावा जो 41 रजिस्टर हैं उनका क्या, मेमोज जो है उनका क्या. मेमोज कई बार उनके पास मेमो का फॉर्मेट नहीं होता है, तो वो गलत फॉर्मेट में भी या कागज पे लिख के दे देते हैं.
उससे भी कंफ्यूजन होता है, सेफ्टी पे भी दिक्कत होता है। तो हमने पहले सबको बुलाया और उनसे बात की कि आप जो ईटीएसआर पहले बना रहे थे उसमें आपको क्या समस्या आई। तो जो बात उठ के सामने आई वो ये आई थी कि आपने काम हमारा बढ़ा दिया, पर रजिस्टर्स हमें अभी भी भरने पड़ रहे हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस होते हैं, कोई तो वो रजिस्टर चेक करते हैं, और ईटीएसआर में भी यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू वर्क, वहां पे भी आप एंट्री करें। तो वो पहले अपने आप को सेव करेगा, पहले अपना काम करेगा। तो ये बात समझ में आई कि अगर हमको उनको टेक्नोलॉजी देना है तो उनका काम आसान करना पड़ेगा। वी हैव टू शो देम कि दिस द टेक्नोलॉजी विच वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट विल हेल्प देम एंड विल ईज देयर वर्क। तो इसके लिए उनके सजेशंस, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे ग्रुप सी हो, ये 30 पीपल का ग्रुप था जिसमें सारे लोगों का सजेशन लिया। इसके अलावा हम लोग रोटेशन बेसिस पे भी बुलाते रहे और पैरेलल में सिस्टम पहले 1 साल रन किया, एंड देन उसके बाद हमने इसको इंप्लीमेंट किया फुल टाइम। ये एक मेन इंटरफेस इस तरह से इसमें डिजाइन किया गया, जिसमें कि जैसे एलसी गेट्स है, तो एलसी गेट्स में अगर इसका कोई अलर्ट आया है या इमरजेंसी गेट की का कोई अलर्ट आया है, डिस्कनेक्शन किसी ने डिमांड किया है, तो एक इंटरफेस हो जिसमें इसके जो मल्टीपल काम है वो एक साथ दिखे कि क्या क्या काम उसका पेंडिंग है, क्या क्या काम सामने हो रहा है, कौन से एलसी गेट खुले हैं, कौन से बंद हैं, और कोई भी एंट्री अगर हो रही है जहां पे उसको एक्शन लेना है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह से ब्लिंक करेगा और बगल में हाईलाइट हो जाएगा कि ये आपका काम अभी भी पेंडिंग है। हाँ, अब ये जैसे ये डिफरेंट रजिस्टर्स को हमने कैसे किया है सर, इस पे बात किए थे सर। ये पीछे से जब स्टेशन है वो पास करता है जो इंफॉर्मेशन जो अभी फोन पे बताता है वो डिजिटली पास कर, इसमें हमारे मिस्टेक्स के चांस नहीं रहेंगे कि कौन सा ट्रेन पास हो रहा है। एंड लेटर ऑन जब डेटा लॉगर से इंटीग्रेट करते हैं तो डेटा लॉगर के सीक्वेंस से पता चल जाएगा कि किस लाइन से गाड़ी खुली है और कौन सी गाड़ी खुली है। तो ये जो गाड़ियों का संचालन होता है कि पीछे वाले ने आगे का लाइन मांगा और गाड़ी का दूसरे का लाइन मांग के दूसरी गाड़ी चला दी, ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। दूसरा प्रॉब्लम कि जैसे अगर किसी ने किसी को लिखवाया है कि ये ट्रेन जा रही है, उसने 243 की जगह पे 246 लिख दिया, ये वाली भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, क्योंकि सेम डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों को दिखेगा कि कौन सा डेटा ट्रांसफर हुआ है। वो टीएसआर में भी दिखता है सर। तो इस तरह से डिजिटल टीएसआर किया। इसमें सर अब ट्रेन डिटेल्स फीडिंग एट एंट्री स्टेशन एंड ऑटो पॉपुलेशन एट फॉर द नेक्स्ट स्टेशन ऐसे होता है सर कि एक लाइन क्लियर टीएसआर एडवांस फॉर्म हुआ जिसमें लाइन क्लियर इंक्वायरी की गई। इसमें अपना इसने नंबर लिख दिया कि ये ट्रेन है, ये तो ट्रेन जैसे ही नंबर लिखेगा तो उसका डिटेल ऑटो फीड वो आईसीएमएस के डेटा से निकाल के यहां बता देगा कि ये ट्रेन नंबर है सहरसा एनडीएलएस वैशाली एक्सप्रेस है, जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, और ये लाइन क्लियर का टाइम कितने बजे मांगा गया। तो जैसे ही ये लाइन क्लियर का टाइम मांगेगा, नेक्स्ट जो स्टेशन है वहां डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कि ये लाइन क्लियर इंक्वायरी आपके पास हुई है, और वो ब्लिंक करता रहेगा, तो उसको पता रहेगा कि ये लाइन क्लियर मुझसे मांगी गई है। जब ये मांग लेगा सर तो फिर वो अगले पे डेटा ऑटो टीएसआर में हो जाएगा। यहां पर जैसे ये एंट्री में दिख रहा है डेटा पॉपुलेट नेक्स्ट टीएसआर पॉइंट सर। सिमिलरली प्राइवेट नंबर बुक्स जो है सर वो इस तरह से दिखेंगे, जो हमारा जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है कि प्राइवेट नंबर कितना होना चाहिए उस तरह से कटेगा, पर डिजिटली कटेगा। पर्पस भी इसमें बताया रहेगा कि आपने किस पर्पस से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया है, और बुक अपने आप अपडेट होते जाएंगे और बुक्स के प्रिंट आउट भी हम ले सकते हैं। सिमिलरली ब्लॉक रजिस्टर्स एंड इंटरलिंकिंग विद टीएसआर। अब यहां पर क्या है सर कि ब्लॉक्स जब किसी ने मांगा तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट का, इंजीनियरिंग का, एसएनटी का, सिग्नल का, टीआरडी का ब्लॉक डिमांड्स का उनके पास मोबाइल ऐप रहेगा जो व्हाइट लिस्टेड है, उन्हीं के मोबाइल से वो बस डिमांड जा सकता है। वो उन्होंने जो डिमांड किया है वो ऑटो जनरेट होके रजिस्टर में ऑटो एंट्री हो जाएगा। अभी क्या है, वो एक मेमो देता है, उस मेमो को देखकर ये अपने रजिस्टर में उतारते हैं, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, और स्टेशन मास्टर का वहां पर सिग्नेचर भी आराम से, वहां पर एक पैड दिया हुआ है सिग्नेचर पैड, उस पे वो सिग्नेचर करेंगे पैड पे और डिजिटली सिग्नेचर यहां पर अंकित हो जाएगा, जैसा इसमें देखा जा सकता है सर। यहाँ स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर है, ये कब लाइन मांगी गई, ब्लॉक, ये ब्लॉक कब शुरू होने का टाइम 16:42 यहाँ दिया हुआ है, कितने देर का ब्लॉक मांगा है, और जब उसने कितने बजे उसने है तो स्टेशन अधीक्षक के हस्ताक्षर हो गए। इसी तरह सारे
सारे जो ब्लॉक्स हैं सर, उनमें हमको एंट्री बार बार नहीं करनी पड़ेगी और मेमो भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। जो मेमो हमारे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स में दिए गए हैं वो सेम फॉर्मेट यहां पर जैसा देखा जा रहा है सर कि यहाँ पर अपना स्टेशन मास्टर ने सिग्नेचर कर दिया और यहाँ पीडब्ल्यूआई का सिग्नेचर हो गया, ये मेमो जनरेट हो गया। सिमिलरली यहां पर अब जैसे इंटरलिंक से काम कर रहा है सर, वो अब दिखा रहे हैं कि इंजीनियरिंग ब्लॉक डिमांड पीडब्ल्यूआई ने किया अपने मोबाइल पर, वो मोबाइल से ऑटो पॉपुलेटेड हो गया वो एसएम के ब्लॉक रजिस्टर में, जो नीचे एंट्री उसके ब्लॉक रजिस्टर में आ गई। ये लाल में जो एंट्री दिखाई जा रही है सर, वो ब्लॉक पोजीशन का जो होगा वो हो जाएगा और इसी तरह जब ब्लॉक कैंसिल करेगा तो वो भी मेमो ऑटो जनरेट हो जाएगा। और ये सारे जो ऑटो जनरेट हो रहे हैं इसके जो डेटा है सर, इसमें कंफ्यूजन का चांस कम हो जाएगा। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिपरकशन और जो मांगा है, जिस लाइन में मांगा है, जिस समय से मांगा है, अब हमें वो बैठ के जो हम यहाँ पर बैठ के इनकी पंचायती करते हैं कि इन्होंने इतने बजे मेमो दिया, इसने इतने बजे रिसीव नहीं किया, ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। हमारे पास सबका टाइम स्टैम्प होगा कि कितने बजे मेमो जनरेट हुआ, कितने बजे ब्लॉक अलाउड हुआ। इससे एक और फायदा यह है सर कि जो मेमो लेके आता है और स्टेशन पैनल पे आके सिग्नेचर करवाता है, वो सिग्नेचर करवाने के बाद वापस उस साइट पे जाता है, वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो जो ट्रैफिक पे रिपरकशन हो रहा है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा सर इसमें। सिमिलरली सर अगर जैसे लोड स्टेबलिंग है, उसको कैसे हमने लिया है, क्योंकि लोड स्टेबलिंग इज डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास बाकी पीडब्ल्यूआई, आईओडब्ल्यू ये सब फिक्स्ड हैं, पर लोड स्टेबलिंग में क्योंकि गार्ड्स को साइन करना पड़ता है, वो गार्ड्स ट्रेन मैनेजर्स कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसमें हमने एक फैसिलिटी दी है कि आप स्टेबलिंग रजिस्टर में जो डिजिटल सिग्नेचर पैड से यहाँ पे साइन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ दिखेगा हमारा लोड स्टेबलिंग रजिस्टर, जो फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब्ड उसी फॉर्मेट में सर। इसमें क्या किया जाता है, ये सर एक ऑप्शन सर यहाँ पर जो कोने में देखिए दिखा जा रहा है कि लोड मार्क फॉर स्टेबलिंग, तो TSR में ही सीधे आप स्टेबलिंग मार्क कर देंगे तो इनका डेटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा लोड स्टेबलिंग रजिस्टर में। देन यू विल हैव ऑप्शन फॉर ड्रॉप डाउन कि मिनिमम 2 पोर्ट के लगे हैं कि नहीं, यस और नो, आपके स्प्रिंग, आपके जो आउटर ट्रैंक्स लगे हैं कि नहीं, आपने वहां गुटका और चेन लगाया है कि नहीं, और उसके बाद लोको पायलट का हस्ताक्षर हैंड ब्रेक अप्लाई हुआ है कि नहीं 6 में, आप यस नो इसमें सेलेक्ट करेंगे और सिग्नेचर करेंगे और वो स्टेबल मार्क कर दिया जाएगा। और आपको क्लियरेंस करना है तो क्लियरेंस का टाइम भी एग्जिट हो जाए, ये वहां पे आ जाएगा कि आपने कितने बजे लोड को का गुटका और वो सब हटा दिया, उसको क्लियर कितने बजे करने के लिए दिया है, वो भी यहाँ टाइम स्टैंप आ जाएगा और स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर आ जाएगा कि कितने बजे हुआ है, और क्लियरेंस का रिमार्क्स भी आ जाएगा कि इसके क्रू इतने बजे अराइव हुए और उसके बाद हमने इसका स्टेबल वाला सारा हटा दिया है, गुटका हटा दिया, चेन हटा दिया और ये रेडी है मूव करने के लिए। सिमिलरली डिस्कनेक्शन एंड रिकनेक्शन मेमोज को भी TSR से लिंक कर दिया है, कमांड किया तो इनका जो सिग्नल आपका रिकनेक्शन डिस्कनेक्शन, इसमें भी ऑटो पॉपुलेट होता है डेटा, जो मेमो वो देता है सिग्नल जो CSI देगा हमें, उससे ऑटो पॉपुलेट और मेमोज भी जनरेट हो जाएंगे एग्जैक्टली जिसने जो भरा है उसी के हिसाब से। और फिर जब ये हम यहाँ पर देंगे तो ये सिग्नेचर यहाँ पे स्टेशन मास्टर का करा दिया और फिर उसको पास किया, तो यहाँ पर सर ये त्रुटियां होने की चांस कम हो जाएंगी कि उसने 1 नंबर लिखा, हमने 1A लिख दिया, ये सब चीज बंद हो जाएगा सर। अब ये सारे रजिस्टर्स कैसे दिखेंगे सर, यहाँ रजिस्टर्स का एक ऑप्शन है डैशबोर्ड के पास में, आप कोई भी रजिस्टर खोल के उसका पूरा हिस्ट्री यहां से देख सकते हैं। सिमिलरली सर फॉर्म्स एंड मेमोज, सारे फॉर्म्स हमने डिजिटलाइज कर लिए हैं, कोई भी फॉर्म नहीं छोड़ा है सर, उसमें सारे फॉर्म, सारे के सारे फॉर्म उसमें से आपके डिजिटल मेमोज अथॉरिटी एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में एज प्रिस्क्राइब्ड वहां पे उपलब्ध है। आपको केवल उसको सेलेक्ट करना है और वो डिजिटली साइन कीजिए, उसका अगर प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट दीजिए। इसमें सर एक और बेनिफिट क्या है कि जब भी कोई फेलियर होता है तो हमने फील्ड में ये ऑब्जर्व किया है कि फेलियर के बाद वो मेमो साइन कराने के लिए पहले तो वो पोर्टर को वो बुलाते हैं, ग्रुप डी को,
वो आते हैं पैनल पे, उस मेमो में साइन करवाते हैं, स्टेशन मास्टर साइन करके उनको देते हैं and फिर वो जाते हैं। तो कोई भी फेलियर में ऑलमोस्ट 20 मिनट मेरा इसी में खराब होता है। तो इसमें एक व्यवस्था हम लोग कर रहे थे सर कि दोनों एंड पे हमें मेमो कहाँ देना पड़ता है। बेसिकली जो पॉइंट्स है दोनों स्टार्टर के पास पार करने के लिए दोनों तरफ देना पड़ता है टाइम सेविंग के लिए। तो अप एंड डाउन दोनों तरफ एक एक प्रिंटर अगर ब्लूटूथ काम देते हैं और हम सीधे यहां से कमांड देते हैं कि वहां प्रिंट आउट आ गया, ग्रुप पोर्टर गया वहां पॉइंट्समैन, उससे वहीं से लिया और सीधे वहीं पे बगल में लोको पायलट को दे दिया। तो इट इज सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फेलियर्स। अब ये तो सर बात हो गई फॉर्म मेमो की, बट अब नाउ एज वी आर गेटिंग द डेटा, इससे हम अलर्ट जनरेट कर सकते हैं सेफ्टीज का। अब ये सेफ्टी अलर्ट कैसे काम करता है सर? सपोज किसी ने हमसे लाइन क्लियर मांगा, पिछले स्टेशन ने हमसे लाइन क्लियर मांगा, हमने दिया ओके लाइन क्लियर दिया, या फिर यहां पर जैसे वो डेटा लॉगर में आ गया कि आपने वहां पर उसका सिग्नल लोअर कर दिया या उसको लाइन क्लियर अलाउ कर दिया। तो ये फिर बोलेगा नहीं रुकिए, आपने इस एलसी गेट जो आपसे अटैच है उसका अभी तक प्राइवेट नंबर आपने फिल नहीं किया है, तो आप पहले उसको अलर्ट, आप एलसी गेट्स को देखिए कि आपने उसको किया है कि नहीं, और अगर उससे एक्सचेंज किया प्राइवेट नंबर तो प्लीज फिल द प्राइवेट नंबर। सिमिलरली जो एक ऑक्यूपाइड लाइन का रूट चेंज करने की बात की जाती थी सर, तो इसमें क्या होता है कि आया और वो दूसरे कामों में उलझ गया तो उसने इस रूट को चेंज में नहीं किया। तो अब इसमें हमने देखा था सर कि ऑलमोस्ट हमारा जब ये ध्यान देने लगे इन स्टेशन पे जिस पे हमने इसको इंप्लीमेंट किया है सर, वहां पर ये ऑलमोस्ट मतलब एक दो केसेस रह गए जो कि कभी कभी ये हो जाता था सर, वो भी उनकी मिस्टेक से। अदरवाइज इनको प्रॉपर टाइम पे अलर्ट आ रहा है कि आपने इसको रूट चेंज किया है कि नहीं, तो वो उसको रूट प्रॉपर चेंज कर पाता है। कुछ चलता है और उसने उसका लाइन दे दिया है तो वो तुरंत आपको अलर्ट करेगा कि नहीं इसमें आप रिसेप्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ब्लॉक दिया हुआ है। तरह से सर अगर कोई कंट्रोल को कोई मैसेज देना है, कंट्रोल को सपोज मैसेज देना है कि भाई इस ट्रेन से आपकी ये क्रू उतरने वाली है और उसी समय शिफ्ट चेंज हो गया, वो अगला भूल गया, ये इस तरह की चीजों से बचने के लिए सीधे ट्रेन नंबर से टैग कर दिया जा रहा है कंट्रोल में मैसेज देके। वो ट्रेन नंबर, पर्टिकुलर ट्रेन नंबर गुड्स भी हो सकती है, कोचिंग भी हो सकती है, वो ट्रेन नंबर जैसे ही उस स्टेशन पे आएगी, उसके स्टेशन के लिए लाइन क्लियर पिछला स्टेशन उससे मांगेगा, तो सामने वाले को यह भी दिखा दिया जाएगा कि इस ट्रेन का उसको करना क्या है, इससे क्रू आने वाला है जो कि बीसीएन वहां पे स्टेबल्ड है, उससे उसके लिए इसको उतारना है, आप उस क्रू को उतार लें एंड उससे काम करवाएं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप्स को भरने की कोशिश की गई है और सेफ्टी फीचर्स को भी एनहांस करने की कोशिश की गई इसमें। अब इसके मेजर बेनिफिट्स की बात अगर करते हैं सर, तो पहला तो है कि सेफ्टी एट स्टेशन का एक डिजिटल फ्रेमवर्क बन जाएगा अंडर, और उस डिजिटल फ्रेमवर्क से एक सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। दूसरा है कि सर ये ड्रजरी ऑफ पेपर वर्क्स कम होंगे, स्टेशन मास्टर ट्रेन ऑपरेशंस में फोकस कर पाएंगे, वो अपने ब्लॉक प्लानिंग में फोकस कर पाएंगे। उसके बाद सर सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ है जो हमारी अधिकतर यहाँ की होती है सर, कि इतने बजे हमने ब्लॉक मेमो दिया, उसने नहीं लिया, उसने नहीं रिसीव किया, या उसने ऐसा मेमो लिख के दिया, उसने कागज पे दिया, ये सब खत्म होकर एक सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ होगा जिसपे हम प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन होगा ही सर। ब्लॉक मार्जिन के एफिशिएंट यूज हो सकते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन जो आने और जाने में टाइम लग रहा है वो सब रुकेगा, एंड यू विल हैव द पैटर्न कि कौन सा एसेट कितने दिनों में मेंटेन हो रहा है, ये एसेट हो रहा है तो इसी के सेम रिपरकशन में कौन कौन से एसेट हैं जो ओवरड्यू होने वाले हैं जिनको मेंटेन किया जा सकता है। तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट एक जब ब्लॉक लेगा तो उसके मार्जिन और शैडोज में जो अपकमिंग हमारे ओवरड्यू एसेट्स होने वाले हैं, जो 3-4 दिन में ओवरड्यू होने वाले हैं या एक हफ्ता में होने वाले हैं, उस पे लग के ये एक साथ उसको शैडो में काम कर सकता है और हम ये इन्फोर्स करा पाएंगे क्योंकि वी विल हैव द नॉलेज कि कौन कौन से एसेट इनके ओवरड्यू होने वाले हैं, बिकॉज ये ट्रेंड पूरा आ जाएगा। ट्रेनिंग और ऑडिटिंग ये सब आसान हो जाएगा क्योंकि हम एक स्टेशन पे रह के किसी भी स्टेशन के एक जगह पर रह के किसी भी स्टेशन का हम ऑडिट कर सकेंगे।
उसके सारे रजिस्टर्स देख सकेंगे, हमें फिजिकली जाने की हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे जो स्टेशन मास्टर के वर्किंग में है उनको ये पता होगा कि हमारा काम हर जगह से देखा जा सकता है और सारे लोग हमारे काम को देख रहे हैं, तो कोई भी अगर गलत इसमें करेंगे तो इमीडिएटली हाईलाइट हो जाएगा, तो दे विल बी मोर कॉसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, मेरा जो एक्सपीरियंस है सर कि रेल का हमारा जो कटिंग एज है वो हमारा स्टेशन है। स्टेशन ही हमारे इमेज को क्रिएट करता है। अगर एक बंदा आ रहा है, हम उसे डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, और वो जब स्टेशन पे आके देखता है कि यहाँ तो केवल डिजिटल इंडिया के कहने वाले लोग यहाँ पे रजिस्टर्स रखे हुए हैं, 40-50 रजिस्टर्स भर रहे हैं, हर ट्रेन का नाम लिख रहे हैं कि कितने बजे आई है और कितने बजे गई है, तो ये हमारा इमेज उससे सही नहीं बनता है कि हम डिजिटल कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है सर, क्योंकि हमने जो अपने एज में एक्सपीरियंस किया है, ये डिजिटलाइजेशन का एज ये स्टार्ट हुआ था जब टिकटिंग को इंटरनेट से जोड़ा गया था सर। जब आईआरसीटीसी ने टिकटिंग इंटरनेट से जोड़ा तो टिकट और इंटरनेट हर घर में कोने कोने में यूज करने वाले लोग इंटरनेट को यूज करना शुरू किए। तो वी वेर वन ऑफ द pioneers ऑफ इंटरनेट यूजेस इन इंडिया, एंड स्टिल हम अपने स्टेशन को अभी तक नहीं ठीक कर पाए। इसी में सर फर्दर है कि ये जो पीआरएस, एनटीएस और जो डिफरेंट डेटा सब मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्टेशन पे एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर के लिए हमें फाइट करना पड़ता है। अगर उसके पास कंप्यूटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, तो सारा डेटा, कहीं का भी डेटा रियल टाइम में उसको हम अपडेट कर पाएंगे और वो स्टेशन से ले पाएंगे। इनफैक्ट जो ब्लॉक की भी बात की गई थी, अभी ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, उसमें सर वो सारा चीज कंट्रोल से फीड कराया गया, पर जो ब्लॉक दिया जाता है और जो ब्लॉक कैंसिल होता है वो यूनिट स्टेशन होता है। तो स्टेशन इज द बेसिक यूनिट। अब इसका जो फ्यूचर का हमारा है पर्सपेक्टिव सर, बेसिकली ये तो हमने स्टेशन सॉल्व किया सर, बट हमें सॉल्व करना है ऑपरेशंस। ऑपरेशन सॉल्व करने के लिए हमें करना है, जो भी मेरे कलीग्स अभी जो भी ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं उनको सबको मालूम है कि जब भी कंट्रोल में हम कोई चीज डेटा निकालने जाते हैं तो आधा टाइम वो डिटेंशन ही निकालते रह जाते हैं कि कहां लूपिंग हुआ, कहां नहीं हुआ। वंस वी हैव द डेटा कि किस लाइन से गुजरी है ट्रेन, तो वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा डिटेंशन, हमें जरूरत ही नहीं होगी कि किसी को इंटरवीन करने की। सिमिलरली सर, ये पूरा जो भी हम रन कर रहे हैं ट्रेन, इट्स ऑल मैथमेटिक्स। इसमें आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का ग्राफ है। अब बीच में फैक्टर्स जो हैं कि एलसी गेट्स की कितने फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ब्लॉक्स कितने देर में रुक रही है, कोई ट्रेन का ऑप्टिमम स्पीड क्या होना चाहिए, कॉशन एक्चुअली हमको कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ये सारे अगर फैक्टर्स हम फैक्टर इन कर लें, साथ में हर गाड़ी का टीएम एंड ईएम हमारे पास है, तो जब हम माइन्यूटली, अगर किसी ने भी, जब भी हम लोग सारे लोगों ने किया ही होगा कि किसी की पंक्चुअलिटी सुधारने की बात करते हैं, तो हम उसका टीएम देखते हैं, उसका ईएम देखते हैं, उसका देखते हैं कि उसके टीएम सीएम्स कहाँ जा रहे हैं। उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि नहीं, इसको प्रेसिडेंस यहाँ पे दे दो, इस ट्रेन को इससे प्रेसिडेंस दे दो, या उस ट्रेन को प्रेसिडेंस नहीं दो। तो ये सारी फैक्टर्स, ये फैक्टर इन किया जा सकता है अगर वी हैव डेटा ऑफ ऑल द स्टेशन की कहां पर कौन सी गाड़ी कब किस लाइन में खड़ी है। दूसरा सर, कि अगर कोई ट्रेन लॉस कर रहा है, रियल टाइम में उसने को अलर्ट आ जाए, ये ट्रेन का जो रनिंग टाइम है इस लोगों के साथ इस कोचिंग का 10 मिनट होना चाहिए था, बट इनकमिंग ड्राइवर ने 11 मिनट लिया है और कुछ रिपोर्ट नहीं किया है कि क्या इशू है, तो वो तुरंत फ्लैग हो जाएगा कि आपने यहां पर 1 मिनट 2 मिनट यहां पे लॉस किया है, यहां 3 मिनट लॉस किया है, क्या रीजन है। तो दे विल नॉट बी एबल टू हाइड एनीथिंग, नाइदर एनी इंसिडेंसेस नॉर देयर इनएफिशिएंसी। अगर एक लोको स्लो चल रहा है और ये कॉशन है, तो आइदर टेल अस कि कॉशन को इंक्रीज किया माना जाए, या फिर लोको पायलट जो लोको है उसका ऑप्टिमम स्पीड पे वो नहीं चल रहा है, उसको देखा जाए। तो एसेट फेलियर्स जो होंगे वो सीधे यहीं से मतलब हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे कि हमारा कहां कहां पे फेलियर हो रहा है, जो हमने दिमाग किया। इसके अलावा सर, कि सपोज कोई ट्रेन है सर, तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन सोनपुर में क्या था सर, कि जो पंक्चुअलिटी लॉस होती थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ लूपिंग्स। तो लूपिंग्स में क्या होता था कि क्योंकि मेन लाइन में प्लेटफॉर्म सब जगह नहीं है, तो और पीछे आने वाली ट्रेन में किसी एक ट्रेन का मान लीजिए स्टॉपेज है और लूप लाइन में प्लेटफॉर्म है, तो लोग मेन लाइन में गुड्स को स्टेबल कर देते थे। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है सर कि मतलब उसको हम
1 घंटा वहां पे एक लूप में रखे, 3 गाड़ी पास कर गई, चौथी गाड़ी जो आ रही है तो इसको आगे अगले के लूप में रख दिए, ताकि पीछे आने वाली जो स्टॉपिंग की ट्रेन है वो स्टॉप भी लूप में हो जाए, और जहां पे उसको स्टॉप होना है, और अगले में वो फिर लूपिंग नहीं करे, वो मेन लाइन से अपना निकल जाए। इस तरह की प्लानिंग में डिपेंड करेगा कि क्रू कब उसका अवेलेबल है। सपोज कि क्रू अवेलेबल उसका 2 घंटे बाद होने वाला है, तो हम कई बार ऐसा, या 3 घंटे बाद होने वाला है, तो हम कई बार यार्ड को ना जाम करके पीछे कहां स्टेबल करना है, ये सजेशन एआई जनरेट करके हमको दे दे, और वो कंट्रोल चार्ट के बगल में चार्ट हो जिसमें ये उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे, एक सजेस्टिव, कि आप ये क्रू जो है इसके 9 घंटे हो गए हैं, इसको अगले स्टेशन में पहुंचने और क्रू रेस्टअप को देखते हुए इसको अगले 5 घंटा और चलाना पड़ेगा, क्या आप इसको 15 घंटा काम कराएंगे? अगर आप लिखेंगे कि नो, तो वो फिर नेक्स्ट सजेशन करेगा कि आप इसको इस लूप में आप 1 घंटा खड़ा कीजिए, तब तक पीछे से ये क्रू रेस्टअप हो रहा है, जो पीछे से ट्रेन आ रही है उस ट्रेन के लिए क्रू को बुक कीजिए जो आए और इसको उठा ले। तो ये जो हमारा मेजर टाइम इस क्रू के और इसमें बीच में चला जाता है सर, तो 2 घंटा पहले क्रू को क्यों बोलना है? जब एंट्री किए है हमारे यहां 5 घंटा पहले क्रू को मैसेज चला जाएगा कि कौन सा ट्रेन उसको पकड़ना है। इस तरह की चीजें, और वो अपने पहले से प्रिपेयर रहेगा, अनलेस अनटिल कोई फेलियर हुआ। तो जो भी ये सर जो हम लोग फाइट करते हैं, रियल टाइम में फाइट करके दूसरे डिपार्टमेंट से बहस करते रहते हैं, ये सभी चीजें बंद होकर एक लॉजिकल कंक्लूजन हर चीज का निकलेगा कि क्या हो रहा है। सिमिलरली जैसा मैंने पहले भी बोला सर कि एसेट्स का जब हम मैपिंग कर लेंगे सारे, एक बार सारे स्टेशंस का आ जाएगा और एक ट्रेंड निकल जाएगा, तो हमें कौन कौन से एसेट ओवर ड्यू होने वाले हैं और उनके मार्जिन में हम कितने शैडो में काम कर सकते हैं। कॉरिडोर ब्लॉक का जो कंसेप्ट था सर वही था कि एक ही कॉरिडोर में सारा काम करना है, बट ये हमें हमेशा का बताएगा कि ये 1 घंटे का ब्लॉक देके हम कैसे 5 घंटे का आउटपुट ले सकते हैं, ये हमें एक सजेशन मिलेगा। और इसी तरह वेरियस एसेट्स जो फेल हो रहे हैं उनकी फेलियर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी भी बता पाएगा, अगर हमारे पास डेटा स्टेशंस का रहेगा और ब्लॉक सेक्शंस का रहेगा। अब सर ये काम जब हुआ सर, तो हमें वहां बोला गया था कि ऑडिट भी कराना है। हमने सारे सुपरवाइजर से ऑडिट करा के, जब पैरेलल में काम चला रहे थे, ऑडिट कराया और मैच किया, डेटा वेर परफेक्टली मैचिंग, और सारे लोग जो सुपरवाइजर थे वो काफी एक्साइटेड है, और उन लोगों ने बहुत अच्छे रिमार्क्स इसमें लिखे हैं, सारे सुपरवाइजर्स ने, सारे डिपार्टमेंट के, चाहे वो ऑपरेटिंग के, इंजीनियरिंग के, एसएनटी के, टीआरडी के, चारों के हमने ले लिए थे इसमें रिमार्क्स सर। अब सर एक, क्योंकि अभी बताया है, एक वर्क फ्लो सर, उसका एक छोटा सा वीडियो है सर, आई वांट टू शेयर दैट वीडियो। 2025 जहां पूरी दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना काम आसान और स्मार्ट बना रही है, वहीं आज भी हमारे स्टेशन मास्टर पेपर वर्क पर निर्भर हैं। लेकिन अब नहीं, पेपर वर्क को कम करने और हमारे स्टेशन मास्टर के काम को आसान बनाने के लिए हमने बनाया है समय। हाउ इट वर्क्स। स्टेशन मास्टर लॉगिन पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर एक सेफ्टी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद वो डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं। एडवांस टीएसआर फॉर्म में लाइन क्लियर इंक्वायरी एंट्री कर सबमिट करने पर अगले स्टेशन पर डेटा ऑटो अपडेट हो जाता है। इससे ट्रेन की डिटेल हर स्टेशन पर बार बार भरने में लगने वाले समय की बचत होती है। कंट्रोल मैसेज। किसी भी इमरजेंसी केस में एक पर्टिकुलर स्टेशन को सही समय पर याद दिलाने के लिए ट्रेन और स्टेशन टैगिंग के माध्यम से कंट्रोल मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में स्टेशन मास्टर को दिखाई देता है। ब्लॉक मॉड्यूल। जब किसी ब्लॉक की मांग करने के लिए इंजीनियरिंग या अन्य विभागों के यूजर मोबाइल ऐप पर ब्लॉक डिमांड फॉर्म भरेंगे, तो वो ब्लॉक डिमांड नोटिफिकेशन के रूप में स्टेशन मास्टर को दिखाई देता है। ब्लॉक ग्रांट होने के बाद टीएसआर एवं अन्य संबंधी ब्लॉक रिकॉर्ड अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। इससे समय की काफी बचत होती है तथा गलती होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसी तरह एस&टी डिस्कनेक्शन, रिकनेक्शन और टीआरडी ब्लॉक के दौरान भी
टाइम सेविंग और सेफ्टी दोनों बढ़ जाती है। SE32 सिग्नल फेलियर स्टेशन पर किसी भी एसेट फेलियर के दौरान स्टेशन मास्टर सिग्नल फेलियर मेमो डिजिटली इशू करता है। जैसे ही ये इशू होता है, SE32 रजिस्टर में फेलियर एंट्री ऑटोमेटिक आती है और सिग्नल डिपार्टमेंट के रिलेटेड यूजर को तुरंत फेलियर नोटिफिकेशन मिलता है। फेलियर ठीक होने पर सिग्नल डिपार्टमेंट के यूजर SE32 रजिस्टर पर अपना रिमार्क अपडेट करते हैं। फॉर्म्स एंड मेमो पेपरलेस और डिजिटल वर्किंग को बढ़ावा देने के लिए सारे फॉर्म्स और मेमो डिजिटली जनरेट करके PDF रूप में डाउनलोड किए जा सकते हैं। PME रिफ्रेशर मॉड्यूल यहाँ स्टेशन के सभी कर्मचारियों के रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किए जाते हैं। लोड स्टेबलिंग TSR और लोड स्टेबलिंग रजिस्टर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे कोई भी लोड को TSR में स्टेबल मार्क करते ही उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली स्टेबलिंग रजिस्टर में अपडेट हो जाती हैं। समय को तैयार करते समय सेफ्टी मेजर पर विशेष ध्यान दिया गया है। सारे सिस्टम डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड और सिक्योरली स्टोर किए जाते हैं। Alert for closure of LC gate before granting line clear. Alert for reversal of point train. System does not allow affected lines. Elimination of memory-based operation. Control message relayed accurately by tagging train. In absolute block system, one train at a time. सभी सेफ्टी मेजर का ध्यान रखते हुए ये सिस्टम स्टेशन मास्टर के काम का दबाव कम कर उनकी एफिशिएंसी बढ़ा। तो सर यहाँ तक देखे हम लोग। अब असिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड था सर इसमें आगे, वो डेटा लॉगर का फीड है सर। हमने इस पे काम किया है। इनफैक्ट कोवा से सर हमने डेटा लॉगर का अभी जो था सर, उनका जो फीचर है उसका हर 5 सेकंड पे स्नैपशॉट लेके अराइवल एंड डिपार्चर टाइम हम उससे फिल कर रहे हैं सर। बट अगर हमें फुल डेटा एक्सेस मिल जाए तो फिर हम डेटा लॉगर से इसको अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे। हो जा रही है इसमें सर ये जो असिस्टेंस है हमें, तो उसमें डेटा लॉगर का एक्सेस चाहिए होगा सर। और ICMS का जो डेटाबेस है उससे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, डाउनलोड करके उसका एक्सेल डाउनलोड ये कर रहे हैं, तो API एक्सेस चाहिए होगा। साथ में हर स्टेशन पे दो इंडस्ट्री गेट कंप्यूटर, 2 प्रिंटर एंड 2 डिजिटल सिग्नेचर पैड्स चाहिए होंगे सर। तो टोटल हमने जैसे देखा है सर कि एक सोनपुर जैसे स्टेशन में करने के लिए सर हमें ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास में सर हमें आराम से हो जाएगा, सारे स्टेशन कवरिंग इंक्लूडिंग द सर्वर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और उसका मेंटेनेंस भी सर। अब जो सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, अब हम थोड़ा सा इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं सर। इसमें हमने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स में सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रेजिलियंस, ये 6 चीजों पर फोकस किया है। सिक्योरिटी मतलब एक सेंट्रली मैनेज हो जो उसका डेटाबेस हो। सेफ्टी मतलब अनऑथराइज्ड कोई उसमें से डेटा हमारे छेड़छाड़ ना कर पाए। इंटीग्रिटी मतलब जिसको जो रोल डिफाइन किया गया है वही उस इवेंट को करे। अवेलेबिलिटी मतलब कि सर पीक टाइम में, इमरजेंसी कंडीशन में भी अवेलेबल हो, इसके लिए सफिशिएंट हमारा पीक आवर्स के लिए भी हम करने के लिए हमारा सिस्टम तैयार हो। अकाउंटेबिलिटी की कोई भी एक्शन हो उसका टाइम स्टैम्प हो और उसके साथ हो कि किसने ये डिसीजन लिया। एंड रिजिलियंस की सपोज कोई अगर अनफॉर्चुनेटली कोई अटैक करता है तो एक ग्रेसफुल डिग्रेडेशन करके जो मिनिमम एस्पेक्ट है उसको कैसे रनिंग किया जाए और पेरिफेरल टास्क को कैसे खत्म कर दिया जाए ग्रेसफुल डिग्रेडेशन करते हुए। अब इसमें आर्किटेक्चर की अगर बात करें सर, तो व्हाट वी हैव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में 7 लेयर पे बात की गई है। जो उनका यूनिट हम लगाएंगे कंट्रोल में सर, और वहां पर एक डेटाबेस नेटवर्क रहेगा। वो डेटाबेस नेटवर्क में एक मास्टर और एक स्लेव डेटा का कंसेप्ट है सर, कि एक अगर फेल कर जाए तो दूसरे पे हम तुरंत शिफ्ट कर पाए। उसके बाद सर उसको प्राइवेट फायरवॉल से प्रोटेक्ट करते हुए ऐप नेटवर्क का एक मास्टर और स्लेव ऐप सर्वर होगा जहां डिसीजन होंगे। जो डेटाबेस है वो एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड रहेगा सर।
उसके बाद ऐप नेटवर्क जो है वो भी फायरवॉल से कनेक्टेड होगा, और सीए अथॉरिटी जो मोबाइल से जो हम इनपुट ले रहे हैं एपीआई गेटवे, और उसको सीए अथॉरिटी इशू की जाएगी, व्हाइट लिस्टिंग की जाएगी, और उसके थ्रू फिर वो वीपीएन नेटवर्क के टनल के थ्रू सर वो बाकी सबसे कम्युनिकेट करेगा। ये सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के जो जो गाइडलाइंस हैं इन सबको ध्यान में रखते हुए वो डिजाइन किया गया था सर, जो आर्किटेक्चर हमने डिजाइन किया था, जिसमें सर्टेन आईटी एक्ट, एनआईसी सिक्योरिटी गाइडलाइंस, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, इन सारों चीजों को देखा गया सर। ये एब्रिविएशंस भी उसमें दिए हुआ था सर। ये सेफ्टी बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन जो होता है सर, इस तरह से कहा गया कि एक बार जब डिवाइस होगा वो डिवाइस में प्राइवेट की स्टोर होगा और उसी से क्वेश्चन आंसर करेगा हमारा सर्वर, और वो क्वेश्चन आंसर के बाद वो रैंडम एक आंसर करेगा, रैंडम की जनरेट करेगा, और फिर वो मैच करेगा कि उसका प्राइवेट की से जिस वो किस मोबाइल से कर रहा है, तो इट शुड बी व्हाइट लिस्टेड मोबाइल जिससे वो काम करेगा सर। ये निर्णायक का भी प्लान किया गया सर। इंक्रिप्शन फॉर डेटा एट रेस्ट, AES 256 GCM, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है सर, इनको भी यूज किया गया था। कॉस्ट की अगर बात करें सर, तो इनिशियल सेटअप का कॉस्ट हमारा जो आ रहा था सर, इंक्लूडिंग इसके 70 स्टेशन पे, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, 1 साल का मेंटेनेंस, डेस्कटॉप यूपीएस, सारे चीज, सर्वर, एपीआई गेटवे, सारे चीजों को लेते हुए सर, तो 7.67 करोड़ का हमने एस्टिमेट किया था सर, इंक्लूडिंग सेंट्रल सर्वर, स्लेव, मास्टर, सारा सर। हार्डवेयर का अगर अलग से जैसे कॉस्ट करेंगे, और एएमसी हार्डवेयर के एएमसी कॉस्ट की भी बात की जाए सर, तो एएमसी लगभग 80 लाख का, 79 लाख का आया था, जो हम एएमसी अगर करते हैं सर 3 साल के लिए। तो टोटल 7 से 8 करोड़ में हमारे पास ये पूरा सिस्टम, एक रोबस्ट सिस्टम तैयार हो जाएगा, विच इज पीनट्स इन कंपैरिजन टू द अदर थिंग्स विच वी आर डूइंग लाइक कवच, जिसमें 50 लाख पर किलोमीटर हम ले रहे हैं सर। वो एक बॉक्स सेक्शन में जितना वो लगा के सेफ्टी इंश्योर करेंगे, उतने में हमारा पूरा काम भी हो जाएगा सर, और हमारे स्टेशन मास्टर्स थोड़े सेफ फील करेंगे, एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे, और वो उनका प्रेशर भी थोड़ा कम होगा, वर्क प्रेशर सर। So this is what we have done till now, sir. Can I just start with few things which I observed and probably Sure. look for your clarification. One is that you said that your PN book को हम काट रहे हैं digital, so that is those PN books will all be machine generated. I Sir. machine generated ही PN books होंगी ना, वो मतलब उनके numbers सर Okay. प्रीफिल्ड मशीन जनरेटेड रहेंगे सर। प्रीफिल्ड मशीन। और दूसरा ये सिग्नेचर जो करेंगे, दिस सिग्नेचर विल इट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, और वो मतलब कैसे साइन करेगा डिजिटली, ऑन व्हाट डिवाइस? एंड सर एक डिजिटल पैड रहेगा, PWI signing a block requisition memo. सर तो जो सर लिमिटेड नंबर्स हैं, सपोज कि एक स्टेशन पे PWI है या फिर जो फिक्स हैं, इनके पास डिजिटल सिग्नेचर वो डायरेक्टली कर सकते हैं सर, वो उनके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से लिंक हो सकता है। और अगर सपोज बाहर से किन्हीं को आना है, सपोज ट्रेन मैनेजर अराइव्स, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, और बहुत सारे नंबर हैं, तो उनके लिए एक डिजिटल पैड की भी व्यवस्था है सर। एंड अनदर थिंग इज, जो आप अलार्म्स दिखा रहे थे, आर दे ओनली विजुअल अलार्म्स है या साउंड अलार्म भी है? विजुअल है या ऑडियो? वो उसमें सर, उसमें साउंड भी है सर और ऑडियो भी है सर। वो ऑडियो में जैसे ही लाइन क्लियर आस्क किया, तो एक बार बोल देगा कि इसकी लाइन क्लियर की इंक्वायरी की गई है, वो अलर्ट कर देगा सर। ओके, आवाज आ जाएगा उसमें। ग्रेट ग्रेट, thank you so much for I thank Mr. Manish Saurabh for giving his consent and presenting his thoughts and his session of the good work which has been done in the Sonpur division. Of course, I'm so glad to hear that there are different facets of it which probably we need to look at. They were also being brought out by the few of the participants. And this is indeed a step forward in the sense that it is digitizing, making the workflows for station master and the field level staff easier, lesser chances of course, what sir was discussing was with a view of how it should be taken in the future, so that it is integrated with the many more technologies and becomes totally SIL4 is like it almost risk free. So
with this has actually, I'm so glad that it has a lot of thoughts have poured in. We have deep dived into the subject. A lot good work has been done. Many more or much is also needed to take it forward and proliferate on a grand scale on IR. And I thank all the participants also to patiently who have been associated with this and have listened to it. And with this, I mean, I thank you all for joining this. And Manish, thanks again for this wonderful presentation, and all the best for you for this endeavor and to take it forward. Thank you, everyone. And with this, we can conclude this session. Right. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for the opportunity, sir. I thank everyone again. Thank you. Thank you.